Hello, my dear students. This time I am going to discuss with you a very interesting topic, that is dextrocardia with situs inversus, which can be diagnosed just by looking at X-ray of a person. So that is a spot diagnosis radiological. So let us start. This is the X-ray of a person showing dextrocardia and situs inversus. A 22 years old girl came to a hospital at Delhi on 25th January 2025 for her checkup and examination for getting a medical health certificate required before visit to abroad. She has no complaint about her health with no symptom. This is her X-ray sent to me by my colleague Dr. Anil Gopala, a senior general physician, resides at Delhi. For that I am extremely thankful to him. He is my colleague of King George's Medical College, from where we have completed our MBBS and MD. वॉच द एक्सरे केयरफुली एंड मेक स्पॉट डायग्नोसिस. आप लोगों ने डायग्नोसिस बनाई ली होगी, देख लिया होगा, बट देयर मस्ट बी सम एक्सप्लेनेशन. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. द हार्ट पॉइंट्स राइट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट इन द चेस्ट. ये राइट साइड में इंस्टेड ऑफ लेफ्ट. सो दैट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया. बट लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम इज एट द हायर लेवल. This one, left dome diaphragm at higher level in comparison to the right dome, that is reversed. And gas shadow of the stomach, here is gas shadow of the stomach, is shown below the dome of diaphragm on the right side instead of the left side. So it means the abdominal organs have been rotated. So it is situs inversus. Hence the radiological diagnosis is dextrocardia with situs inversus in a female. अब आपसे वाइवा पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइटस इन्वर्सस के बारे में मालूम होना चाहिए, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन है. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेक्स्ट्रोकार्डिया. ये जो एक्सरे हमने देखा, इसमें ये ट्रू डेक्स्ट्रोकार्डिया विद साइटस इन्वर्सस है. देयर में बी आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया ओनली विदाउट साइटस इन्वर्सस. फास्ट डेक्स्ट्रोकार्डिया आर डेक्स्ट्रोवर्जन. एंड 4 टाइप्स सेकेंडरी डेक्स्ट्रोकार्डिया. तो वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज टू डेक्स्ट्रोकार्डिया साइटस इन्वर्सस. इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. ट्रू डेक्स्ट्रोकार्डिया विद साइटस इन्वर्सस. ये डेक्स्ट्रोकार्डिया इट इज a rare condition in which the tip of the heart is on the right side of chest instead of left side, and all heart chambers are reversed and mirrors. ये लेफ्ट साइड में हो गया. And the descending aorta is on the right side instead of left. डेक्स्ट्रोकार्डिया. दिस इज डेक्स्ट्रोकार्डिया इन ए बेबी. ये नॉर्मल है, नॉर्मल पोजिशनिंग होता है हार्ट. एंड दिस इज abnormal या रिवर्स या मिरर इमेज पोजिशन ऑफ द हार्ट इन डेक्स्ट्रोकार्डिया. साइटस सोलिटस है नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. थोरेसिक और एब्डोमेन के जो नॉर्मल अरेंजमेंट होता है वो साइटस सोलिटस कहलाता है. जैसे ये राइट लंग, लेफ्ट लंग, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लिवर ऑन द राइट साइड, स्प्लीन लेफ्ट साइड, स्टमक ऑन द लेफ्ट साइड. ये इसे कहते हैं साइटस सोलिटस. बट हेयर लेफ्ट लंग राइट साइड में, राइट लंग लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम राइट साइड में, राइट एट्रियम लेफ्ट साइड में, स्प्लीन राइट साइड, स्टमक राइट साइड, लिवर लेफ्ट साइड, ये रोटेट कर गए thoracic or abdominal, then it is situs inversus. Major visceral organs of chest and abdomen are also reversed and mirrored from their normal position. This may be situs inversus totalis, yani thoracic, affecting both thoracic and abdominal organs. But there may be sometimes situs inversus partialis, affecting only one, either thoracic organs or abdominal organs रिवर्स्ड. तो यहां पर टोटलिस्ट के फाइंडिंग्स है. लंग्स एंड हार्ट रोटेट टू द अपोजिट साइड. बाउल एंड मीजेंट्रिक वेसल्स आर आल्सो मिरर्ड. लिवर, गॉल ब्लैडर, सीकम, एसेंडी कोलन जो राइट साइड में होती है, दोज आर ऑन द लेफ्ट साइड. स्टमक, स्प्लीन, डिसेंडिंग कोलन व्हिच आर यूजुअली ऑन द लेफ्ट साइड, दीज आर ऑन द राइट साइड. Descending aorta is on the right side instead of left. This is important. The organs usually work normally. Person leads a normal life. Sometimes, rarely, there may be some breathing problems or other complications, but usually they lead their normal life. No complication, no symptoms. Accidentally diagnosed होते हैं. In most of the people,
with the dextrocardia and situs inversus. The exact cause is not known. This is a congenital rare abnormality. आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? क्लिनिकली या बाय द इन्वेस्टिगेशन. So clinical diagnosis on auscultation by stethoscope, sometimes accidentally diagnosed होता है. On auscultation by stethoscope, the heart sounds are more clearly heard on the four cardiac chambers located at the right side, जबकि नॉर्मली लेफ्ट साइड में हम वो चैम्बर्स हैं, तो यहाँ पर राइट साइड में आपको मिल रहा है इंस्टेड ऑफ लेफ्ट साइड. ऑन palpation, the apex beat is palpated on the right side of the chest instead of left side. ये लेफ्ट इंटरकास्टल स्पेस में होता है, यहाँ पे राइट में एपेक्स बीट palpate हो रही है. On palpation of abdomen, the liver is palpated in the left hypochondrium under the ribs instead of right hypochondrium. सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से एक्सीडेंटली कभी कभी कोई पेशेंट किसी और बीमारी के लिए आया है, क्लिनिकली एग्जामिन किया तो उसको पता चला कि डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइटस इन्वर्सस है. बट डायग्नोसिस विद द इन्वेस्टिगेशंस से चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, टू डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन. These will help in diagnosis regarding the position of ventricles, blood vessels and viscera. चेस्ट एक्सरे आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी देख लिया है. ये चेस्ट एक्सरे द हार्ट पॉइंट्स टू द राइट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट. ये हार्ट लेफ्ट डोम डायफ्राम इज एट द हायर लेवल इंस्टेड ऑफ राइट डोम डायफ्राम, ये हायर लेवल पर है. गैस शेडो ऑफ द स्टमक इज शोन बिलो द डोम ऑफ डायफ्राम ऑन द राइट साइड. गैस शेडो स्टमक की. Hence, radiological diagnosis is dextrocardia with situs inversus in a female. ये चेस्ट एक्सरे है. ईसी चेस्ट एक्सरे यहाँ पे थोड़ा सा आप कंपैरिजन कर सकते हैं. एक्सरे नॉर्मल पर्सन, ये हार्ट की पोजीशन है मोर ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे मोर ऑन द राइट साइड. ये लेफ्ट राइट डोम ऑफ डायफ्राम हाई लेवल पे है, लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम हाई लेवल पे. गैस शेडो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, स्टमक की यहाँ पर राइट साइड में. तो दिस इज नॉर्मल पर्सन, दिस एक्सरे in the dextrocardia with situs inversus. Now come to ECG. ECG is very interesting, very interesting. नॉर्मली आप लोग मालूम है कि हम लोग इलेक्ट्रोड्स राइट आर्म पे रखते हैं, एक लेफ्ट आर्म पे रखते हैं, एक लेफ्ट फुट पे रखते हैं और एक आंथोवंस ट्रायंगल बन जाता है. ये यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है और ये बाइपोलर स्टैंडर्ड लीड बनती है 1. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लीड 2 बन जाती है. दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, लीड 3 बन जाती है. लीड 1, 2 एंड 3 और ये कार्डियक एक्सिस है लीड 2 के पैरेलल. साथ में फिर चेस्ट लीड्स यहाँ पे रखते हैं V1, V2, V3, V4, V5, 6. V1, V2 ये फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस में है, V3, V4, V3 बीच में है, V2, V4, V5 जो है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में. यहाँ पर लेफ्ट ये V4 जो है मिड क्लेविकल लाइन पर, V5 एंट्री एक्सिल लाइन और V6 मिड एक्सिल लाइन. ये नॉर्मल प्लेसमेंट है इलेक्ट्रोड्स का. तो आपको जो ईसीजी मिलता है नॉर्मली, ये लीड 1, 2, 3 ये स्टैंड बाइपोलर लीड्स है. इसमें देखिए लीड 2 के पैरेलल है हार्ट, तो लीड 2 में QRS कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम मिलता है. दिस इज मैक्सिमम QRS कॉम्प्लेक्स इन द लीड 2 विच इज इक्वल टू QRS of 1 plus QRS 3. दिस इज Antoine's लॉ. AVR, AVL, AVF ये यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हैं. AVR यहाँ पर, AVL ये और AVF. देखिए AVR जो है चूंकि ये राइट साइड में निगेटिव हार्ट होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको AVR जो है निगेटिव मिल रहा है. P निगेटिव, QRS निगेटिव, T निगेटिव. और AVL एक लीड में पॉजिटिव, एक लीड में निगेटिव है. तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा दोनों तरफ पॉजिटिव निगेटिव दोनों है. और AVF पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव वेव्स मिल रही है. V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये आपका चेस्ट लीड्स हैं और इस तरह यूं चलती हैं. तो V1, V2 चूंकि नेगेटिव साइड में है तो नेगेटिव वेव S लंबी है, R छोटी है, पॉजिटिव. V3, V4 न्यूट्रल ऑलमोस्ट हो जाते हैं. V5, V6 में R पॉजिटिव वेव बहुत लंबी है और S वेव बहुत छोटी है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आ रहा है. ये एक नॉर्मल ECG नॉर्मल पर्सन का है. मगर डेक्स्ट्रोकार्डिया में इसका रिवर्स हो रहा है. आप ये देखिए डेक्स्ट्रोकार्डिया कार्डियक एक्सिस राइट साइड में शिफ्ट कर गई लीड 3 के पैरेलल. तो लीड 3 में QRS कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम, लीड 2 और लीड 1. लीड 3 में मैक्सिमम QRS कॉम्प्लेक्स है और 1 में आपको निगेटिव मिल रहा है. यहाँ पर ये PQRST और ये T वेव निगेटिव मिल रही है.
दूसरा एवीआर, एवीएल, एवीआर यहाँ पर पॉजिटिव साइड होता है, एवीएल में एवीएल निगेटिव बन जाता है। तो देखिए आप एवीएल में निगेटिव मिल रहा है, पी निगेटिव, क्यूआरएस निगेटिव और टी निगेटिव। एवीएल में निगेटिव मिल रहा है, एवीआर पॉजिटिव है। और चेस्ट लीड V1 V2 V3 V4 अब इस तरह से हो गया, यूं करके ऐसे करके। तो V1 V2 आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, यहाँ पर V1 V2 निगेटिव थे, यहाँ V3 V4 न्यूट्रल है, और V5 V6 निगेटिव हो गया। यहाँ पे निगेटिव वेव ज्यादा बड़ी है, यहाँ पॉजिटिव वेव ज्यादा बड़ी है। तो जस्ट ईसीजी रिवर्स हो जा रहा है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं टेक्स्ट से। टू डायग्नोस डेक्स्ट्रोकार्डिया ऑन एन ईसीजी द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इज अ मिरर इमेज appearance where the electrical axis is significantly shifted to the right with positive QRS complexes in lead 1 and 2। ये lead 1 2 पॉजिटिव है। नेगेटिव QRS complexes in lead 5 V5 और V6, ये V5 V6 नेगेटिव। एंड इन्वर्टेड P waves in lead 1, ये इन्वर्टेड P waves, यहाँ पर P waves इन्वर्टेड है, ये दिस वन। एंड AVL, ये AVL है, AVL में निगेटिव मिला है, P wave निगेटिव, QRS निगेटिव, TV निगेटिव, जबकि वहां पर नॉर्मली AVR होता है। Indicating the heart's apex is positioned on the right side of the chest. So this is best seen when the placing the standard 12 lead ECG leads in their usual positions, as the normal electrical axis will be evident in the lead orientations compared to the normal heart placement. इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएं कि अगर हम नॉर्मली इलेक्ट्रोड, जो नॉर्मल पर्सन रखते हैं वो इलेक्ट्रोड रख रहे हैं, तो ईसीजी रिवर्स मिल रहा है। लेकिन अगर हम ईसीजी नॉर्मल देखना चाहें, तो हम जो लीड्स या इलेक्ट्रोड्स हैं अगर हम उनको रिवर्स कर दें, इलेक्ट्रोड्स को रिवर्स कर दें, लीड्स रिवर्स हो जाएं, तो आपको ईसीजी नॉर्मल पर्सन जैसा मिलेगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए हमने यहाँ पर रिवर्स कर दी चेस्ट लीड्स, ऐसे करके लेफ्ट से लेकर राइट में जा रही है। राइट लिम्ब का इलेक्ट्रोड हमने लेफ्ट लिम्ब पे लगा दिया, लेफ्ट लिम्ब का इलेक्ट्रोड राइट में लगा दिया, रिवर्स कर दिया, तो आपको ये नॉर्मल ईसीजी जो पर्सन का है वो मिलेगा। और आप उसमें और भी चीजें देख सकते हैं कि और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो व्हेन दिस वेरी इंटरेस्टिंग, व्हेन परफॉर्मिंग एन ईसीजी ऑन अ पेशेंट विद डेक्स्ट्रोकार्डिया, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट शुड बी, आप देखने के शुड बी मिरर्ड। इलेक्ट्रोड्स हम रिवर्स कर दे रहे हैं तो ईसीजी नॉर्मल मिल रहा है। इलेक्ट्रोड्स placement should be mirrored by placing the chest leads on the right side of the chest and reversing the left and right arm leads, essentially placing the electrodes as if the heart were on the left side of the chest, allowing for a more accurate interpretation of ECG. ये की पॉइंट्स हैं कि चेस्ट लीड्स पोजिशन ऑल प्रीकार्डियल लीड्स से V1 से V6 इस तरह से ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट, मिररिंग देयर यूजुअल प्लेसमेंट। और लिम्ब लीड्स भी रिवर्स द लेफ्ट एंड राइट आर्म लीड्स, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट राइट आर्म, व्हाइल कीपिंग द लेग लीड्स इन देयर स्टैंडर्ड पोजिशन। राइट आर्म लेफ्ट में लगा दिया, इलेक्ट्रोड लेफ्ट राइट में लगा दिया, तो हमको नॉर्मल ईसीजी मिलता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ईसीजी की ना। तो ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया, ना कम टू द टू डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी। इट इज ए की electrocardiography is key diagnostic tool for dextrocardia when the heart is mal-rotated and positioned on the right side of the chest. It can also help to identify complex congenital heart defects and other structural issues. Two-dimensional echocardiography allows the accurate assessment of complex congenital heart defects associated with dextrocardia. This can show cardiac lesions associated with dextrocardia, congenital heart defects associated with dextrocardia, AV ventricular arterial connections, atrial visual situs, ventricular morphology situs। हमने आपको पहले ही बताया था कि डेक्स्ट्रोकार्डिया अगर साइटस इन्वर्सस के साथ होते तो कॉम्प्लिकेशन यूजुअली नहीं होते, बट अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया आइसोलेटेड है देन देयर में बी सम कॉम्प्लिकेशन, सब एबनॉर्मल आपको डिसीजेस मिल सकती हैं लाइक दीज। तो इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। फोर्थ इज अल्ट्रासोनोग्राफी इन द एब्डामन इन साइटस इन्वर्सस। ये देखिए लेफ्ट राइट लंग रोटेट है, हार्ट रोटेट है, स्प्लीन राइट साइड में, स्टमक राइट साइड में, लिवर लेफ्ट साइड में। और ये नॉर्मली जो सीकम असेंडिंग कोलन वगैरह राइट में होता है ये लेफ्ट में चला जाता है। डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम जो लेफ्ट साइड में होता है ये राइट में चला जाता है। ये नॉर्मल पर्सन का है और यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। तो देयर विल बी ए मिरर इमेज अरेंजमेंट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, लिवर पोजिशन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट इंस्टेड ऑफ राइट, gallbladder located in the left upper quadrant,
spleen position located in the right upper quadrant instead of left, one-form appendix cecum ascending colon in the left side of abdomen, descending colon pelvic colon rectum on the right side of abdomen, descending aorta is placed on the right side instead of left, while inferior vena cava is placed on the left side of abdomen instead of right. तो ये अल्ट्रासाउंड से हो गया. तो ये आपका कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस हो गए. तो ट्रू डेक्स्ट्रोकार्डिया विद साइटस इन्वर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. नाउ सेकंड वैरायटी इज आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया. सिर्फ डेक्स्ट्रोकार्डिया है, साइटस इन्वर्सस नहीं है. आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया विदाउट साइटस इन्वर्सस, लेकिन अगर एब्डोमिनल थोरेसिक अगर ऑर्गन्स में कोई नॉर्मल है, कोई रोटेशन नहीं, तो उनको साइटस सोलिटस कहते हैं. नॉट साइटस इन्वर्सस, इसमें रिवर्स हो रहा है, इसमें नॉर्मल है, साइटस सोलिटस. There is mirror image there is mirror image transposition position of the cardiac chambers, but no situs inversus. Various types of cardiac anomalies are present, hence patient usually has some symptoms. Since there is no situs inversus, hence this condition can be called dextrocardia with situs solitus, as the situs solitus means normal position of organs in thorax and abdomen. तीसरी वैरायटी है फास्ट डेक्स्ट्रोकार्डिया और डेक्स्ट्रोवर्जन. डेक्स्ट्रोवर्जन, देयर इज नो मिरर इमेज ट्रांसपोजिशन ऑफ द कार्डियक चैम्बर्स. बस सिर्फ शिफ्टिंग हो गई है. हियर हार्ट इज मेयरली पोजिशन्ड एबनॉर्मली ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट with some rotation but not mirror image reversal, but with its effect still pointing towards the left. कोई पूरा complete rotation नहीं है, सिर्फ shifting हो गई है. It can be caused by factors like right-sided lung hypoplasia, underdeveloped right lung, which pulls the heart to the right side. तो ये false dextrocardia है. Serious cardiac anomalies may be associated with it. Fourth variety है secondary dextrocardia. In this condition, the heart is displaced to the right side of the chest. It is not rotated, but displaced from various thoracic and lung diseases like increased intrapleural pressure on the left side, such as pleural effusion, hydrothorax, hemothorax, pneumothorax, like this. ये लेफ्ट साइड में ये प्रॉब्लम सकती है जो कि हार्ट को पुश कर सकता है राइट साइड में. As well as there may be diaphragmatic hernia which pushes heart to the right side. तो that is secondary dextrocardia. या तो इसको पुश कर रहे हैं या राइट साइड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो हार्ट को पुल कर ले. Fibrosis or collapse of the right lung which pulls the heart to the right side of the chest. So that is secondary dextrocardia. यानी dextrocardia secondary to some other diseases. तो उसमें उनके सिम्टम्स पाए जाएंगे. ये जैसे राइट साइड में राइट लंग में प्रॉब्लम है, क्या तो कोलेप्स है या फाइब्रोसिस है जो हार्ट को इधर पुल कर ले रहा है या इधर से पुश कर रहा है. तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगा कि देयर सम फ्यू फेमस पर्सनैलिटीज हैविंग डेक्स्ट्रोकार्डिया एंड साइटस इन्वर्सस. Following are few of famous personalities who had dextrocardia with situs inversus and passed their full life without any complication and accidentally diagnosed for the dextrocardia with situs inversus. कौन कौन सी prominent figures हैं? Number 1, Enrique Iglesias, a Spanish singer, songwriter, actor, record producer. इनको ये प्रॉब्लम थी dextrocardia situs inversus. Catherine O'Hara, a Canadian American actress, writer and comedian. Randy Foy, an American basketball player. बास्केटबॉल खेलते थे जबकि उनको डेक्स्ट्रोकार्डिया था, बट ही हैड नो प्रॉब्लम एट ऑल. सब एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए ये डिसीज. फोर्थ, टिम मिलर, डायरेक्टर ऑफ अष्टांग योगा सेंटर इन कैल्सबेड, कैलिफोर्निया. एंड फिफ्थ, रोज मैरी बेंटली. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि शी वॉज ए मोलाला ऑर्गन वुमेन. शी लिव्ड टू 99 years without any complication, and then she donated her body to Oregon Health and Science University, where her condition was discovered by the medical students during dissection of her body as a cadaver.
तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैटवॉक रिसर्च कर रहे थे तब मेडिकल स्टूडेंट्स ने देखा कि ये तो डेक्स्ट्रोकार्डियोसाइटिस इन्वर्सस है आफ्टर डेथ। So these are few important personalities. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। I have a great courtesy to Dr. Anil Gopala, my batchmate, my colleague of King George's Medical College, Lucknow, a senior physician, presently doing his job at Delhi. And I'm also thankful to all of you, all my students and all the viewers who are watching this video. So let me stop here. इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये फाइंडिंग्स है एक्सरे की और ये फाइंडिंग्स है क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, व्हाट में बी द डायग्नोसिस। सो आप लोग पढ़िए, याद कीजिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिए और फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।